Hello everyone, and we welcome you all to the prep board. So last few days are remaining for the TISNET examination and continuing our GK marathon series. Today we bring to you the video on science and technology. So this video is the 14th video of GK marathon series and we will be covering very important topics of science and technology. So please video को end तक देखिएगा because a lot of current affairs and a lot of historical events of science and technology will be discussed here. सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस अवर क्वेश्चन नंबर 1. इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान विल बी लॉन्च इन विच ईयर. सो इंडिया का जो पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है गगनयान वो कौन से ईयर में लॉन्च होगा. सो हमारे पास ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 और 2025. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज 2023. सो जो गगनयान है वो 2023 में लॉन्च होगा. सो यू कैन नोट दिस आंसर. Let's move ahead. Who is the founder of Google? Google के फाउंडर कौन है? So we have Eric Smith, Jeff Bezos, Larry Page और Eugene Charmick. So the correct option for this is Larry Page. He is the founder of Google. So and he is also on the list of Forbes 100 richest people. So this is a very good question. Let's move ahead. आगे बढ़ते हैं. ISRO Indian Space Research Organization has successfully launched 104 satellites from which space vehicle? यानी कि इसरो ने 104 सैटेलाइट्स कौन से स्पेस व्हीकल से लॉन्च किया है. सो वी हैव ऑप्शंस PSLV C-37, C-36, C-35 और C-34. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज PSLV C-37. सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. यू कैन नोट दिस. आगे बढ़ते हैं. व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर. यानी कि इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है. सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ मेगा, शक्ति, परम और पुरुष. So the correct option for this is Param. So Param was the first supercomputer launched by India. Actually, it was Param 8000. So Param 8000 is the first supercomputer launched by India. So you can note the answer. Let's go ahead. In which of the following countries training of astronauts will be conducted for Gaganyaan mission? So Gaganyaan mission जो कि 2023 में इंडिया लॉन्च करेगा. So उसके लिए एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग कौन से कंट्री में होगी. So ऑप्शन है कनाडा, USA, रशिया और यूक्रेन. So the correct option for this is Russia. The training of astronauts will be done in Russia. So इसको आप नोट कर सकते हैं. Which organization has developed Indian robot named Vyomitra? यानी कि व्योममित्रा जो कि एक इंडियन रोबोट है तो इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है. सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ CDAC, इसरो, TIFR और DRDO. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ISRO. ISRO is the correct option for this. Vyomitra has been developed by ISRO. So you can note the correct answer for this. And let's move ahead and discuss our next question. When was WhatsApp incorporated? So again, WhatsApp is a very important social media platform which is being used in India and abroad. So ये कौन से year में establish हुआ है. Options है 2007, 2008, 2009 and 2010. So the correct option for this is 2009. So WhatsApp जो है वो 2009 में इंस्टॉल हुआ है. Let's go ahead. NASA launched first largest space telescope. So NASA ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप स्टार्ट किया है इन दिसंबर 2021. So what is the name of the telescope? So जो ये लार्जेस्ट टेलीस्कोप है इसका नाम क्या है. हबल स्केप टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, स्पिट्जर टेलीस्कोप और मैकेंजी टेलीस्कोप. So the correct option for this is James Webb Space Telescope. So this is the world largest space telescope. So you can note this question as important also because world का largest space telescope है और ये दिसंबर 2021 में नासा ने इसको लॉन्च किया है. James Webb Space Telescope is the correct answer. So please आप इस क्वेश्चन को important भी मार्क कर सकते हैं and you can move you can note. Let's move ahead. Shiyan 11 is the latest satellite launched by which country? So ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि Shiyan 9 एक बहुत ही पावरफुल सैटेलाइट है. तो इस सैटेलाइट को कौन सी कंट्री ने लेटेस्ट लॉन्च किया है. USA, UK, China and India. We have options, 4 options. So the correct option for this is China. Shiyan 11 has been launched by China. You can note this. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Which country hosted International Climate Summit in September 2021? यानी कि इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 में कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है. ऑप्शन है पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और USA. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज इंडिया. दिस हैज बीन होस्टेड बाय इंडिया. लेट्स मूव अहेड.
where was world first electric vehicle charging station inaugurated? So you know कि Prime Minister and India is taking a lot of initiatives to promote electric vehicles, और इसके रिगार्डिंग COP26 समिट में इंडिया ने ये भी प्रॉमिस किया है कि 2070 तक वो अपने नेट कार्बन एमिशंस को जीरो कर लेंगे. सो इससे रिगार्डिंग दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन ऑर्डर टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो हमारे पास ऑप्शंस हैं लेह, चंडीगढ़, काजा और देहरादून. सो वर्ल्ड का जो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये कहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? ये काजा में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है अंडर द इनिशिएटिव टू रिड्यूस इट्स कार्बन एमिशंस. टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है अपने कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है. सो काजा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. यू कैन नोट दिस आंसर. आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन 12 डिस्कस करते हैं. वर्ल्ड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हाट डेट? कि वर्ल्ड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी डेट कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन है मार्च 21, अप्रैल 21, मई 21 और जून 21. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज अप्रैल 21. दिस इज द राइट आंसर. सो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक अवर वीडियो, comment on this video, share this video to your friends and family, and please subscribe to our channel so that आपसे कोई भी आगे आने वाला वीडियो मिस ना हो. So let's move ahead, discuss question number 13. Who has won the Earth Shot Prize under Clean Our Country program? यानी कि जो Clean Our Country program है, इस प्रोग्राम के अंदर अर्थ शॉट प्राइज किसने जीता है? ऑप्शन है हमारे पास कुणाल बहल, विद्युत मोहन, शार्दुल शेठ और हर्ष सेठ. So the correct option for this is Vidyut Mohan. He has won this prestigious prize. So you can note. Which of these is the first Indian state to reserve a job for HIV position candidate? यानी कि HIV से infected patients को कैंडिडेट को जॉब कौन सी स्टेट ने दिया है? ऑप्शन है हमारे पास आसाम, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और केरला. So the correct option for this is Kerala. Kerala is the first state to reserve a job for HIV candidate. So you can note this. Let's move ahead. Chandrayaan 2 was launched on its mission to moon by which space vehicle? यानी कि चंद्रयान 2 तो है बहुत ही स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल है ये. चंद्रयान 2 जो था ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट थी. सो ये जो सैटेलाइट थी ये इंडिया मिशन टू मून था. सो ये कौन से स्पेस व्हीकल से लॉन्च हुआ था? सो ये ऑप्शन तो GSLV C11, GSLV C45, GSLV MK333 और GSLV FII. सो द करेक्ट ऑप्शन इज GSLV MK333. सो ये जो व्हीकल था इस व्हीकल से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था. सो अगेन यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो लेट्स मूव अहेड. ऑक्सीजन इन अवर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स बाय विच प्रोटीन? यानी कि बॉडी का कौन सा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है? सो द वी हैव ऑप्शंस ऑफ केराटिन, हीमोग्लोबिन, लिपिड्स एंड कोलेजन. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है. सो यू कैन नोट द आंसर हीमोग्लोबिन. आगे बढ़ते हैं. Which of the following technology is used to detect submerged object under water? यानी कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो submerged object को डिटेक्ट करती है? We have options of sonar, radar, barometer और laser. So the correct option for this is sonar. Sonar is the correct option for this. Let's move ahead. Conversion of solid directly into vapor is called. So ये कौन सा प्रोसेस है जिससे conversion of solid directly into vapor, vapor solid जो है वो directly vapor में convert हो जाता है? So we have options of condensation, precipitation, sublimation or evaporation. So the correct option for this is sublimation. Sublimation is the correct answer for this. So conversion of solid directly into vapor is called sublimation. So you can note the answer. आगे बढ़ते हैं. इंटरनेट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? सो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंटरनेट जो था वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1992, 1993, 94 और 95. So the correct option for this is 1995. Internet was started in 1995. So this is the correct answer. First nuclear power plant in India was started in which state? यानी कि इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो कौन सी स्टेट में वो स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज महाराष्ट्र. इंडिया का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था. Which planet or solar system does not have a satellite? यानी कि सोलर सिस्टम का ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास सैटेलाइट नहीं है? ऑप्शन है मरकरी, वीनस, मार्स और जुपिटर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज मरकरी. मरकरी डज नॉट हैव अ सैटेलाइट. सो यू कैन नोट दिस.
इन विच ईयर एक्सरे वर इन्वेंटेड, यानी कि एक्सरे का इन्वेंशन कौन से ईयर में हुआ था? सो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. So 1885, 1895, 1905 और 1915. So the correct option for this is 1895. यानी कि जो सैटेलाइट है वो 1895 में it was invented. So you can note this. Which is the first successful cloned animal? यानी कि पहला successful cloned animal कौन सा है? Option है lion, tiger, sheep और cat. So the first successfully cloned animal was sheep. So you can note this question. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया? यानी कि इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था उसका नाम क्या है? परम, अप्सरा, कामिनी या ध्रुवा? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज अप्सरा. सो अप्सरा वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया. सो प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट. दिस इज अ गुड क्वेश्शन. लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, यानी कि जो पहला पावर प्लांट था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन है दार्जिलिंग, शिमला, मनाली और सतलुज. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज दार्जिलिंग. यानी कि फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन दार्जिलिंग. सो यू कैन नोट दिस करेक्ट आंसर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक अवर वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ताकि बाकी और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट आगे आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस यू विल गेट एक्सेस टू दैट. And you can also contact us on these below numbers. We also provide coaching for MBA entrance examination and law and other entrance examination. So if you want to enroll in any of our online or offline program, then you can contact us on these below numbers. You can like our Facebook page and you can also visit our website. So we wish all the best to all our students. Thank you very much.